Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Shri Harsh Malhotra, Honorable Union Minister, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Roads and Transport, Government of India. We extend a very warm welcome to the Honorable Minister, sir. Ladies and gentlemen, we are honored to welcome in our midst on the stage Honorable Minister Shri Harsh Malhotra. We also warmly welcome Dr. Arvind Kumar, and also seated with us on the dais is Shri MP Singh. We extend a warm and hearty welcome to all the dignitaries on the dais. First of all, may I request Dr. Arvind Kumar, President, India Water Foundation, to kindly present a plant to the Honorable Minister, and please welcome him. It's a green ode to Mother Earth, and we welcome the Honorable Minister, sir, with this beautiful sapling. I believe the Honorable Minister, sir, was due to join us for the evening session today, but we are very honored here today with your presence here, sir. Thank you for taking out very valuable time from your very busy schedule to be here with us. So, without further ado, may I request the Honorable Minister, sir, to straight away address the August gathering, as I have been told. Ji. Ji. So as per instructions from the Honorable Minister, sir, we had received earlier instructions that since you are very short on time, you would be making a speech. But first, I take the pleasure of requesting Dr. Arvind Kumar to kindly do the context setting. On behalf of Dr. Kumar, I would give the context of the event that we are organizing. And this is Water Transversality Global Awards and Conclave, which we are organizing in collaboration with several ministries and several organizations who are part of this event. There are several knowledge partners like IUCN, World Water Council, Global Water Partnership, Wetlands International, etc., and also the Ministry of Power, Jal Shakti, Ministry of Social Justice and Empowerment, Heavy Industries, and NITI Aayog have come forward to support this event. So, sir, in this event for 2 days, we will be deliberating on ESG and how transversality and ESG are interconnected, how water, energy, health, environment are interconnected with ESG transversality. So, for 2 days, we are going to deliberate on this through different dialogues. We also have a leaders dialogue, we also have a global leaders dialogue, and also a CEO's dialogue, which is going to deliberate on various aspects of how these interconnections are inextricably linked and how they provide us recommendations for what is going to happen in the days which are about to come, especially considering the global scenario which is happening right now, in fact, of us, the triple planetary crisis, also the geopolitical situations. So we are going to talk about this for the 2 days, and we'll definitely send the proceedings to you later. And now I request you to please come on the stage and give your address, sir, please. Dignitaries on the dais and off the dais also, Dr. Kumar, और यहाँ पर सेकेंड एडिशन ऑफ वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव पर उपस्थित सभी कुछ मिनिस्ट्रीज़ के साथी यहाँ बैठे हैं और कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग ग्लोबली वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक दिन का कॉन्क्लेव है
और आपका जो इश्यूज़ हैं वो इतने वास्ट हैं, आप उसके साथ कुछ ना कुछ जस्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। आपने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग डिस्कशंस प्लान किया होगा। मैं पिछली बार भी आपके साथ इस कॉन्क्लेव में आया था। आज पूरे विश्व में बहुत से क्राइसिस हैं, जो ये वॉर चल रही है उसके अलावा भी, चाहे वो एनवायरनमेंट क्राइसिस हो, पानी का स्ट्रेस हो वर्ल्ड ओवर, एनर्जी इनसिक्योरिटी की बात है, या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज की बात है। लेकिन जब तक इन प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट करके इनके सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं की जाएगी, जो कि इस कॉन्क्लेव में करने की कोशिश की जा रही है, तब तक इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिल सकता। और अच्छी बात यह है कि आज देश में वो सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो 360 डिग्री इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करना और सॉल्यूशन की तरफ काम कर रही है। अगर मैं सबसे पहले एनर्जी की बात करूं, तो मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये सोचा कि 2030 से पहले हम जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं या जितनी हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका 50% नॉन फॉसिल फ्यूल होगा। तो वो हमने अभी अचीव कर लिया। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या विंड मिल से हमें एनर्जी मिल रही है, या हम और बायो एनर्जी की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें। ये अपने आप में एक बड़ा लैंडमार्क है जो भारत की सरकार ने अचीव भी किया है। 2070 में अगर हम नेट जीरो एमिशन की बात करते हैं, तो उसको अचीव करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट का काम भी है। आज हम इथेनॉल ब्लेंड की बात करते हैं, जो हमारे बड़े व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे भी बात करके हम ऐसा इंजन के लिए लगातार उनसे बात कर रहे हैं जिसमें कि 20% इथेनॉल ब्लेंड हो सके, ताकि जो कार्बन का एमिशन है उसको हम और कम कर सकें। इसके साथ साथ इथेनॉल का जो बनना है वो भी पॉलिटिकली, आप लोगों ने पराली के बारे में बहुत सुना होगा, तो हम पराली से इथेनॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। इसके साथ साथ चाहे वो मेज का या शुगर केन का फ्लैक्स है, उससे भी हम इथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि इथेनॉल ब्लेंड इंजन्स आने के बाद 20%, अभी हम 12-13% तक पहुंचे हैं। जब हम 20% बात करेंगे, 20% इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल की बात करेंगे, तो डेफिनेटली एमिशन को हम कम करेंगे ही। इसके साथ साथ अभी हमारे बहुत से हाईवेज ऐसे हैं जो हमने ग्रीन हाईवेज बनाने की कोशिश की है। ग्रीन हाईवेज दो तरह से हैं। एक तो यह है कि उन हाईवेज को हम उसके दोनों तरफ और मीडियंस में प्लांटेशन वो हम लगातार कर रहे हैं, और हमारे हाईवेज के साथ में जो लैंड हम लोगों ने एक्वायर की है उस पर भी बड़ा फॉरेस्ट भी बनाने की बात करते हैं। वो फॉरेस्ट इसलिए भी कि जहां पर हमें कहीं पेड़ को काटने की बात करनी पड़ती है, जहां मजबूरी है पेड़ को काटना, ताकि उसका 10 टाइम्स ट्रीज को हम उन फॉरेस्ट में ग्रो कर सकें। ऑल्दो हम पेड़ को काटने के साथ साथ हमारा दूसरा ऑल्टरनेटिव पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने का भी है, और हम बहुत हद तक इस बात में सक्सेसफुल हैं कि जो हमें प्लांट ऐसे लगते हैं, पेड़ ऐसे लगते हैं कि ये ट्रांसप्लांट करने के बाद सरवाइव कर सकते हैं, तो हमने उस पर भी लगातार काम किए हैं। और ये बताते हुए मुझे अच्छा भी लग रहा है कि अभी तक हमने जितने भी पेड़ ट्रांसप्लांट करे हैं उसका सर्वाइवल रेट 90% है। तो ग्रीन कॉरिडोर्स और इसके साथ साथ हमारा जो लेंथी और ऐसी जगह पर हमारे हाईवेज हैं
जहां पर हम सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। एक बड़े पीस ऑफ लैंड में सोलर पैनल लगाना और अलोंग द साइड ऑफ हाईवे सोलर पैनल लगाना, दोनों में फर्क भी है, क्योंकि जब हम बड़े पीस ऑफ लैंड पे लगाते हैं तो उसको एनर्जी को कलेक्ट करना इजी है, उसको डिसिमिनेट करना इजी है। पर अगर हम 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर लेंथ के ऊपर सोलर पैनल्स लगाते हैं तो डेफिनेटली वो कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको केबलिंग कर ग्रिड तक लेके जाना अपने आप में थोड़ा कॉस्टली है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हम फिर भी इस बात के लिए बिल्कुल काम करना चाहते हैं कि वो लेंथ वाइज भी हम सोलर पैनल्स को लगा सके। उसका एक बड़ा उदाहरण, अगर आप लोगों ने कभी अभी जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हम जल्दी ही इनॉग्रेट करने जा रहे हैं तो उस पर अभी देखेंगे आपको सोलर पैनल्स लगे हुए दिखाई देंगे। हमारा एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर दिल्ली का अक्षरधाम से लेकर के करावल नगर तक 16 किलोमीटर का स्ट्रेच है। हम वहां पर पूरे में सोलर पैनल्स लगाने का प्लान किया है, जो कि हमने काम शुरू किया है। हमारा वो इकोनॉमिकली वायबल होता है, सस्टेनेबल होता है। तो इस समय देश के अंदर 1,46,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, जिसमें से अब तक हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारा ये एक्सपेरिमेंट इकोनॉमिकली वायबल होगा, सस्टेनेबल होगा, तो हम लगभग 50,000 किलोमीटर पर सोलर पैनल्स लगाने की बात करते हैं। तो ग्रीन एनर्जी आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ग्लोबली इंपॉर्टेंस की बात है। अगर हम ऑन द अदर हैंड बात करेंगे वाटर को कंजर्वेशन करने की और उसका वो यूटिलाइजेशन जितना मिनिमम यूटिलाइजेशन है, वेस्टेज कम है, या उसको रिजुविनेट करने की जो हमारे वो पॉन्ड्स हैं या वो हमारे वाटर सोर्सेज हैं जिनको हम रिजुविनेट कर सकते हैं, उसके लिए इस बार के बजट में भी एक बड़ा प्रोविजन किया गया है, जिससे कि हम लगभग 500 करोड़ का प्रोविजन उसके लिए किया गया है जो वाटर सोर्सेज हैं उनको रिजुविनेट कर सकें। दूसरी तरफ हम उस देश में हैं जिसमें 2014 से पहले 18,000 गांव में लाइट नहीं थी। ये अपने आप में बड़ा लैंडमार्क अचीव किया मोदी जी के नेतृत्व में कि हमने 2014 के बाद 2019 तक उन 18,000 गांव में लाइट भेजी है, और उसके बाद का हमारा टारगेट हर गांव में लाइट भेजने का था, जो कि हमने 2024 तक उसको अचीव किया। साथ साथ आज 15 करोड़ घरों में पूरे देश के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो जहां हम पानी को हर घर तक नल से पहुंचा पा रहे हैं, पीने के पानी को, वहीं उतनी ही बड़ी जरूरत उसको कंजर्व करने की भी है। जो हमारी, मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो यमुना जी के ऊपर अक्सर बहुत बात आती है कि यमुना जी की सफाई की बात है। उस पर इससे पहले की 10 साल पहले जो दिल्ली के अंदर सरकार रही उन्होंने इसके ऊपर बहुत बात की, काम नहीं किया। आज दिल्ली के अंदर लगभग 33 किलोमीटर यमुना जी बहती हैं, और एक तरफ ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है दिल्ली वालों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो साफ नहीं है, ये बात भी दुर्भाग्य की बात है उसके लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगभग 18 बड़े ड्रेन्स जो दिल्ली में यमुना जी में गिरते हैं। अब अगर वो सीवेज या वो जो नाले हैं वो जब यमुना जी में गिरते हैं एज इट इज, बिना उनके पानी को साफ किए, बिना उनको डिसिल्ट किए, तो डेफिनेटली यमुना जी की सफाई होना मुश्किल काम है, और खाली फ्लोटिंग साफ करना या उसको डिसिल्ट करने से काम नहीं होने वाला। दिल्ली की सरकार ने केंद्र की मदद से लगभग 9,000 करोड़ रुपए इस बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए कि वो जो 18 बड़े नाले यमुना जी में, दिल्ली में यमुना जी में गिरते हैं, उनका पानी अच्छी तरह से साफ करके
नॉन ड्रिंकिंग वाटर, नॉन फाउल स्मेलिंग वाटर, उनके मुहाने पर सीटीपीज लगा करके और वो पानी उसमें यमुना जी में आए और जो सिल्ट बाहर आती है उस सिल्ट को या तो खाद के रूप में काम में लिया जाए या कहीं फिलिंग के रूप में उसको यूज किया जाए। इसके ऊपर भी प्लानिंग होना शुरू हुआ है। तो सिमिलरली क्लीन गंगा मिशन प्रधानमंत्री जी ने जब इसको प्रारंभ किया तो देश की जितनी बड़ी प्रोमिनेंट नदियां हैं उनको रिवाइव करना, वहां पर वो रिवाइवल, पानी ठीक होना तो बहुत जरूरी है ही, पानी का सोर्स लैंड के अंदर भी ठीक रहे वो भी बहुत जरूरी है, क्लीन वाटर रहे, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी क्लीन रहे, पर उसके साथ साथ उसको इकोनॉमिक मॉडल भी बनाया जा सकता है। मेरा अभी बिहार जाना हुआ था चुनाव के सिलसिले में, तो मुझे देख के हैरानी हुई कि वहां पर गंगा जी का पार्ट बहुत चौड़ा है। वहां पर बनारस से आया हुआ शिप जो कि टूरिस्ट को लेकर के आता है, वो मैंने देखा। जब मैंने उसका, मुझे पता नहीं था, मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन जब मैंने वो बड़ा शिप देखा तो मैंने उसके बारे में इंक्वायर किया, पूछा, तो ये पिछले 1 साल से बनारस से बिहार में पटना से भी आगे, मैं एक मुंगेर एक लोकसभा है उस तरफ था, वहां पर मैंने उसको देखा और ये जानकारी मिली कि ये यहां से कोलकाता जाने की भी इसकी बात है। तो ये इकोनॉमिक मॉडल भी है, क्योंकि जो वाटरवेज हैं, वाटरवेज किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडियम से सबसे इकोनॉमिकली चीपर है, चाहे वो रोड हो, रेल हो, एयर हो, वाटरवेज उनमें सबसे सस्ता पड़ता है। तो न केवल पानी को कंजर्व करना है, पानी साफ रहे, ये इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब वो इंटीग्रेट होता है इकोनॉमिक मॉडल के साथ, तो सिमिलरली हमारा प्लान ये भी है कि हम दिल्ली से आगरा भी वाटरवेज को बना सकें, चाहे उसमें टूरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू हो या ट्रांसपोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो ये वो मॉडल्स हैं जब हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। एक तरफ हमारे देश के कॉरपोरेट्स अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि CSR के माध्यम से उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओन की है। मुझे बताते हुए बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉरपोरेट अफेयर्स भी मेरे पास है। इसमें हमारी बहुत जितनी बड़ी कंपनीज हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि जो हमारा यूथ है, जो यूथ 10th 12th सिंपल ग्रेजुएशन, कोई बड़ा प्रोफेशनल कोर्स नहीं, BA BCom या इवन BTech तक के जो हमारे युवा हैं, या इस तरह के जो भी कोर्सेज हैं, उनको उन कॉरपोरेट से रिक्वेस्ट करके हमने एक PMIS स्कीम को चालू किया, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को अगले 4 साल में हम इंटर्नशिप देंगे। मींस एकेडमिया को जो वो बुकिश नॉलेज अपने क्लासरूम में लेते हैं, उस एकेडमिया को इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। और इसमें अब तक हम, क्योंकि हमने इस पर 2 पायलट किए हैं और उस पायलट में लगभग 2 लाख के करीब हमारे यंगस्टर्स इन बड़ी कंपनीज में जो अपने CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी और सरकार के कंट्रीब्यूशन, दोनों के कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे 2 लाख युवा उन बड़ी कंपनीज में 12 महीने की इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिसमें उनको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, स्टाइपेंड तो उनका 5,000 है, लेकिन बड़ी कंपनीज ने उनको जब अपने यहां एंगेज किया तो उनको 18-20 हजार भी वो दे रहे हैं। तो ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें भी इस सभी इश्यूज पर जो शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, इन सभी इश्यूज को 12 पॉइंट्स में शेड्यूल 7 CSR के लिए मैंडेट देता है कि किन किन इश्यूज पर कंपनीज अंडर देयर CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन स्पेंड। और अच्छी बात यह है कि
अधिकांश बड़ी कंपनियों ने अपने फाउंडेशन बना करके उसके माध्यम से, चाहे वो एजुकेशन पर काम कर रही हो, चाहे क्लीन गंगा के लिए, क्लीन गंगा मिशन के लिए काम कर रही हो, हेल्थ के लिए काम कर रही हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं, और इनकेस कोई आपदा आती है तो पीएम केयर फंड में भी उनका कंट्रीब्यूशन सीएसआर के माध्यम से जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि आपका एक कॉन्क्लेव, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है और भी बात की जा सकती है इस विषय पर, ये कॉन्क्लेव का जो आउटपुट है, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि जो सारा दिन की आपकी डेलिब्रेशंस रहेंगी, अलग अलग इश्यूज पर अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी बात रखेंगे, उसको डॉक्यूमेंटेड कर आप सरकार को देंगे, हमें देंगे, तो हम आपके ऑब्जर्वेशंस को, आपके सजेशंस को इंप्लीमेंट करने का भी प्रयास करेंगे। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी कि आप आज हमारे बीच यहाँ पधारे और अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री MP सिंह जी को कि वे कृपया आएं और सभा के सम्मुख धन्यवाद प्रस्तुत